Okay, students, here now I will discuss about the types of speed and velocity. Firstly, I have taken the types of speed. Types of speed में we have taken these types: uniform speed, non-uniform speed, initial speed, final speed, average speed, and last one instantaneous speed. Okay, तो first I have taken the uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन स्पीड नोन एज अ यूनिफॉर्म स्पीड. Here I have taken the example, this one. If body starts from A, okay, and comes to B after covering 4 meter distance in 2 seconds, and the body goes B to C and covers 4 meter distance, okay, in the same time 2 seconds. And in the third case, body goes C to D and covers 4 meter distance in the same time 2 seconds. So I have seen here, and you have seen here, the distances are equal for each and every case. For this AB, BC and CD, in each case you will see the distances are same, okay, and times are also same. So here I have seen the body covers equal distance in equal intervals of time. So this is the uniform motion. So what is the condition for the uniform motion? Equal distances should be covered in equal intervals of time. Similarly, I can explain this non-uniform speed. Non-uniform speed is what? When a body covers unequal distance in equal intervals of time. Okay. For example, the first case, body covers 6 meter distance in 2 seconds, and from B to C the body covers 3 meter distance in 2 seconds, and from C to D the body covers 8 meter distance in 2 seconds. So what you have seen here, you have seen the body covers unequal distances in equal intervals of time. This is a non-uniform motion, because in the first case body covers 6 meter distances to 2 seconds, and 3 meter distance from B to C, 3 meter in 2 seconds. Times are same. यहाँ पर हमने देखा टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंसेस अनइक्वल है. तो जब टाइम सेम होता है और डिस्टेंसेस अनइक्वल होती हैं, यहाँ 2 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया बॉडी, इस केस में 2 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया. टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस कम हो गई. इसी तरह से यहाँ 2 सेकंड में 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गई. तो इस तरह से हमने देखा कि टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंसेस unequal है. तो when a body covers unequal distances in equal intervals of time, then that is known as non-uniform motion. And uniform motion, when a body covers equal distances in equal intervals of time, then is known as uniform speed या uniform motion भी आप उसको कह सकते हैं. इसी तरह से हमने initial speed is what? देखिए यहाँ हमने small s से speed को denote किया है. बॉडी A से स्टार्ट करती है तो A पर उसका जो स्पीड रहा होगा उसको हमने S1 से डिनोट किया है. ठीक है. उसके बाद फाइनली बॉडी D पर आके D पर पहुंचती है. ठीक है. ये फाइनल पोजीशन हमने लिया है. D पर पहुंचती है, D पर उसका स्पीड S2 होता है. ठीक है. तो इस तरह से जो इनिशियल स्पीड क्या होगा? स्पीड एट स्टार्ट ऑफ जर्नी. तो स्टार्ट ऑफ जर्नी विल बी ओके A is the position from where the body starts its journey. Okay, so S1 is the initial speed, and final speed is what? Speed at end of journey, so it will be S2. So D is the end point of the journey. Actually the body will reach over here, so the speed at this point will be S2. Clear? And average speed will be what? Average speed is the total distance covered in total time. It will be called the average speed. So average speed is equal to total distance upon total time. Clear? यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया उसको हम टोटल डिस्टेंस लेंगे, और टोटल टाइम जो लगा उसको वो हम लेंगे. ठीक है. जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, टोटल डिस्टेंस हम यहाँ निकालें तो इसमें A से B उसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, B से C उसने 3 किया, 6 से कितना हो गया? 9 हो गया. उसके बाद C से D उसने 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और 9 + 8 कितना हो गया? 17 हो गया. ठीक है. तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस 17 मीटर हो गया. टाइम कितना लगा उसको? 2 + 2 4 + 2 6, यानी 17/6. इस तरह से हम उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का. आगे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. ठीक है. बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड.
इस तरह से नेक्स्ट टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम में बॉडी का स्पीड क्या रहा होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। जैसा हमने माने ड्यूरिंग दिस होल जर्नी आई हैव टेकन this is the instantaneous speed, ds is the instantaneous speed at a particular time dt. So dt is a small time actually, this is small duration, what will be the speed of the body, that is known as the instantaneous speed, okay. तो speed at particular instant of time उसको हम कहते हैं instantaneous speed and denoted by ds. तो ds is the instantaneous speed in small time dt. क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके टाइप्स ऑफ स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड लास्ट वन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? जिस तरह हमने अभी यूनिफॉर्म स्पीड के केस में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म स्पीड इज व्हाट, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म स्पीड. Similarly, uniform velocity will be the equal distance in equal intervals of time, but it will be along a straight path, a straight line. The condition is that the body should move along a straight path. Okay, then in that case, if a body covers equal distance in equal intervals of time, okay, along a straight path, that is known as uniform velocity. And non-uniform velocity is what? When a body covers unequal distance in equal intervals of time along a straight path, that is known as non-uniform velocity. So in case of uniform velocity, I have taken this example. Body starts from A. This is the initial position, and this is B is the final position. So when a body starts from A, initial the time we have taken this t is equal to 0, and during this path from A to B, the body covers 2 meter distance, and time taken is 1 second. When a body goes from B to C, it covers the same distance 2 meter and in the same time 1 second. When a body goes from C to D, the distance is same 2 meter and time is also same 1 second. So what you have seen here, you have seen the body covers equal distances in equal intervals of time. So this is a uniform velocity, but this is along a straight path. Along a straight path. उस केस में आपने देखा था वहाँ पाथ स्ट्रेट नहीं था, वहाँ डायरेक्शंस डिफरेंट डायरेक्शंस थी, डिफरेंट डायरेक्शंस के में जो है बॉडी लेंथ कवर करती है टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये बॉडी जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में लेंथ कवर करती है, ओके, सिंगल टाइम के साथ, ओके, सिंगल डायरेक्शन में जो है लेंथ कवर कर रही है बॉडी टाइम के साथ, ओके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो हियर वी हैव टेकन द बॉडी कवर्स equal distance in equal intervals of time along a straight path, so it is the uniform velocity. तो uniform velocity में जो कंडीशन है वो सिर्फ ये इसके अंदर चेंज आप देख रहे हैं, बाकी एज इट इज है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, लेकिन यहाँ पर हमने देखा पाथ जो है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, यानी डायरेक्शन सिंगल होना चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है किस पर, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी हमने पाथ कैसा लिया, स्ट्रेट लिया है क्योंकि वेलोसिटी है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है. तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या है कि फर्स्टली बॉडी कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड. तो हमने देखा फर्स्ट व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम A to B, इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड. व्हेन अ बॉडी गोज फ्रॉम B to C, इट कवर्स 1 मीटर डिस्टेंस in 1 second. The time is same, but the distances are different here. In the first 1 second, distance covered by the body is 2 meter. In the second 1 second, the distance covered is 1 meter here. So distance decreases, okay? And similarly in the third case, when the body goes from C to D, it covers 3 meter distance in 1 second. So here the times are same. Times same है, लेकिन distances unequal है, okay? And path कैसा है? Straight path है. इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यहाँ पर पाथ स्ट्रेट है, डिस्टेंसेस सेम है, टाइम सेम है, इसलिए हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके. उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके क्लियर हो जाएगा, जैसे कि इनिशियल स्पीड में आपको मैंने बताया था, वहाँ पर जहाँ से बॉडी ने जर्नी स्टार्ट की है वो उसका और उस प्लेस पर उसका जो स्पीड होगा उसको हम इनिशियल स्पीड कहेंगे. तो यहाँ मैंने यू को इनिशियल स्पीड लिया है. तो बॉडी, बिकॉज बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ओके, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, सो we have taken u is the velocity
over here. Okay, and similarly v is the velocity at this point. This is the final position. This is the final position. Okay, तो initial velocity क्या होगा? Velocity at start of journey. Start of journey, so it will be u. And final velocity is what? Velocity at end of journey, so it is v. And we have taken these notations with the vector sign because these are the vector quantity. This is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. So we have taken u with the vector sign and v with the vector sign. Okay. And the next one, average velocity. So what is average velocity? Average velocity will be equals to u plus v upon 2. It is the arithmetic mean of the initial and final velocities. ठीक है, तो initial velocity is u and final is v, and average velocity will be the sum of these velocities upon 2. इसका arithmetic mean लिया है, किसका? initial और final का arithmetic mean लिया है. तो arithmetic mean किस तरह से लेंगे? sum of these two velocities and divide by 2. Clear? और last में हमने देखा instantaneous velocity, velocity at particular instant of time. This will be instant of velocity. तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. आज की क्लास में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. स्पीड इट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो वेलोसिटी इज ए स्पेशल केस ऑफ स्पीड. वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज ऑल्सो ए स्पीड. वेलोसिटी की स्पीड ही है, लेकिन ये स्पीड का एक स्पेशल केस है कि जब बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करती है, तब उस केस में उसकी स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं. यानी जब वो कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करती है तो उसकी जो स्पीड होती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो उसका एक सिंगल डायरेक्शन होता है. तो जब स्पीड का एक सिंगल डायरेक्शन होगा तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे. ठीक है, तो व्हेनेवर बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द वेलोसिटी. तो क्लियर हो गया होगा स्पीड और वेलोसिटी क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है. ठीक है, डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे. जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस होते हैं, वही सेम डिफरेंसेस जो है वो स्पीड और वेलोसिटी के भी होते हैं, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बताए थे, यानी कि स्पीड के टाइप्स और वेलोसिटी के टाइप्स. स्पीड के जो टाइप्स हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. ठीक है, इनिशियल फाइनल स्पीड मैंने आपको बताया था. उसके बाद मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड और उसके फाइनली इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज व्हाट? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. और व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इसी तरह से मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में बताया. वेलोसिटी में जो टाइप्स हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज व्हाट? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. ओके, यहाँ कंडीशन है कि जब बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ के अलोंग इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करती है तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं. इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? जब बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म velocity. Okay, and when a body covers unequal distances in equal intervals of time along a straight path, that is known as non-uniform velocity. इसी तरह से मैंने बताया था आपको average velocity is what? Average velocity is the arithmetic mean of initial and final velocity, means u plus v upon 2. And instantaneous, when at a particular instant, at a particular moment, what is the velocity of the body, that is known as instantaneous velocity. Thank you so much.